معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوئس عثمان کے بولم 85 کے پارٹ 4 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں گے جنگل میں بارگون تمام سپاہیوں کو مارنے کے بعد اسامتین سے کہتا ہے، یہ ہنر مانتے اسامتین، تمہیں کس چیز پر فخر ہے؟ جواباً اسامتین کہتا ہے، مجھے اپنی صداقت پر فخر ہے جناب۔ جواباً بارگون کہتا ہے، اچھا یہ لوگ کیوں مرے؟ جواباً اسامتین کہتا ہے، میں نے انہیں اس لیے مارا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں کتنا صادق ہوں جناب۔ تو بارگون کہتا ہے، یہ بہادر جو کئی سالوں سے میرے ساتھ تلوار چلاتے رہے، انہوں نے شاید مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، لیکن میں نے انہیں تمہارے لیے مار ڈالا اسامتین۔ کیا تم صادق ہو سکتے ہو؟ اور اگر اس کے برعکس ہوا تو مت بھولنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھی بارگون اسامتین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر عثمان عالم شاہ اور گیغاتو کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ عثمان کو فاتح لوٹا ہوا دیکھ کر لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ گیغاتو اور عالم شاہ کو دیکھ کر لوگ بھڑک جاتے ہیں اور جو بھی ان کے ہاتھ میں آتا ہے دے مارتے ہیں۔ کئی سپاہی مسلسل لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سرداری خیمے کے سامنے پہنچ کر عثمان اپنا گھوڑا روک لیتا ہے اور قبیلے کے لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ سلوا بھی کئی خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ عثمان عالم شاہ اور گیغاتو کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند کر دیتا ہے، پھر گھوڑے سے اترنے کے بعد سرداری خیمے کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے لوگو، ہم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا الحمدللہ۔ ان دونوں کی کوئی اصلیت نہیں جو ترکوں کے سروں پر آفت بن چکے تھے، اب یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک باہر سے آیا اور دوسرا ہم میں سے ہے، لیکن اب یہ میرے انصاف کی تلوار کے نیچے ہے۔ اب وزیر عالم شاہ اور گیغاتو کو میرے خیمے میں لے آؤ، اس سے پہلے کہ یہ اپنی آخری سانسیں لے میں ان سے بات کروں گا۔ یہ سن کر سپاہی ان دونوں کو سرداری خیمے کے اندر لے جاتے ہیں۔ عثمان مزید کہتا ہے، فکر مت کرے، ان کی موت آسان نہیں ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ وزیر عالم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے والا کون ہے؟ ہم پہلے یہ جانیں گے اور پھر میں ان دونوں کے سر کاٹ ڈالوں گا۔ جب گیغاتو مرے گا تو ترکمان قبائل کے لوگ ہجوم بن کر آئیں گے، پھر نظام عالم کے لیے ریاست اسی قبیلے سے قائم ہوگی۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ ایک بار پھر عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں اور عثمان سرداری خیمے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لمحے الحجہ بھاگتی ہوئی وہاں آتی ہے اور سلجار خاتون سے کہتی ہے، اورحان کو تیز بخار ہے امی جان۔ یہ سن کر سلجار خاتون الحجہ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر سلطان مسعود اپنی فوج کے ساتھ کائی قبیلے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، سردار اعلیٰ کا فرض سب کو معلوم ہے، اس کا کام ہماری سرزمینوں کی حفاظت کرنا ہے اور موقع پا کر دشمن پر حملہ آور ہونا ہے، اپنے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا نہیں۔ تم نے اتنی بڑی غداری کی کہ موت بھی تمہارے لیے فلاح ہے عثمان۔ اب سلجوق ریاست کے سرزمینوں میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہیں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا جائے گا، لیکن تم مرو گے نہیں۔ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ باغی تمہیں دیکھ کر عبرت نہ حاصل کریں۔ کیا غداری نہ کرنے والے شہنشاہ سے تعاون کرتے ہیں عثمان؟ میں آ رہا ہوں عثمان، میں آ رہا ہوں، میں تم سے تمہاری نافرمانی کا حساب لینے آ رہا ہوں۔ ادھر کائی قبیلے میں ملعون خاتون اورحان کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اسی لمحے خواتین وہاں آتی ہیں اور سلجار خاتون اورحان کے کپڑے اتار کر اس کا علاج شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری جانب کنگور عمر صاحب کی لاش کو دیکھتے ہوئے بارگون سے کہتا ہے، تم نے اچھا کام کیا بارگون، علاقوں کو ایک اور آفت سے نجات مل گئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی کنگور آگے بڑھتا ہے اور سونے کے سکوں کی ایک تھیلی بارگون کو دیتا ہے۔ جواباً بارگون سونا کنگور کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کنگور کہتا ہے، کیا یہ کم تھا بارگون؟ اس کے ساتھ ہی بارگون کنگور کے کچھ آدمی کو مار کر اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو کنگور؟ جواباً کنگور پوچھتا ہے، میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ تو بارگون کہتا ہے، تم ڈر جاؤ گے، میں نے تمہاری روح کو اس بے عزتی کے لیے معاف کر دیا جو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ کیا تم مجھ سے 2 جنگجو کی رقم لوگے؟ اس پر کنگور کہتا ہے، یہ ایک ایسی بے عزتی ہے۔ تو بارگون کہتا ہے، کیا میں نے عمر کو سونے کے لیے مارا؟ تم مجھے خرید نہیں سکتے کنگور اور مجھے قابو نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بارگون کنگور کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، وزیر عالم شاہ اور آپ کے بھائی کو میرا سلام، میں جلدی ان دونوں سے ملنے جاؤں گا، جو ہوا وہ ہمارے درمیان رہے گا کنگور۔ یہ سنتے ہی کنگور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں عثمان کے سامنے عالم شاہ اور گیغاتو موجود ہوتے ہیں، جبکہ کوسس اور نیکولا بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان کے اشارے پر برہان عالم شاہ کی ذرا اتار دیتا ہے اور عثمان کہتا ہے، تم بہت بزدل ہو عالم شاہ، تم ڈاہل کے بغیر گھوم بھی نہیں سکتے، تمہاری تلخی ختم ہو جائے گی، اپنی گندی روح کے ڈر سے اپنے ناپاک جسم کو چھوڑ دو۔ گیغاتو اس شخص کی بزدلی دیکھو جس کے ساتھ تم نے تعاون کیا۔ تو عالم شاہ گندوز کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان بنیادی طور پر مر جائے گا گندوز، لیکن تمہیں اپنے دھوکے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس پر گندوز کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی غلطی جان لی ہے، لیکن یہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ پھر گیغاتو کہتا ہے، جو کرنا ہے کر لو عثمان، مارنا ہے تو مار دو، کچھ بولنا ہے تو بول دو۔ اس پر عثمان کہتا ہے، میں نہیں بلکہ نیکولا ایسا کرے گا۔ یہ سنتے ہی نیکولا اٹھ کر عالم شاہ اور گیغاتو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ وزیر عالم شاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی عجیب آدمی ہے گیغاتو، آہ گیغاتو، کمزور گیغاتو۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیکولا گیغاتو کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور مزید کہتا ہے، وزیر عالم شاہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا ذرا سنو۔ یہ وزیر میرے قلعے میں آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وحشی گیغاتو کو ان سرزمینوں سے مٹا دوں گا، میں تمام گورنر کو جمع کروں گا اور گیغاتو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ یہ سن کر عالم شاہ نیکولا کو گریبان سے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی زبان بند رکھو نیکولا، گیغاتو کو اپنے جھوٹ کا زہر مت دو۔ تو نیکولا کہتا ہے، میں اچھا جھوٹا ہوں لیکن وزیر عالم شاہ مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔
कि आप उस इत्तेहाद को कैसे इतने लंबे अरसे तक बरकरार रख सकते हैं और दिखा नहीं सकते। क्या ऐसा नहीं है वज़ीर आलिम शाह? तो आलिम शाह कहता है, मेरी वाहिद ख्वाहिश एक आदिलाना निजाम था, अच्छे या बुरे रास्ते से ये मेरी वाहिद ख्वाहिश थी। यह सुनकर उस्मान वज़ीर आलिम शाह के पास आता है और उसे बालू से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें ताकत पसंद है वज़ीर आलिम शाह, लेकिन मैंने तुम्हारी ताकत छीन ली। जब तुम जिंदा रहने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी रूह को जड़ से उखाड़ लूंगा। फिर गुंदूज कहता है, आपने कहा था कि वो लोग जो घुटने टेकने जानते हैं वज़ीर आलिम शाह, वो निजाम कायम करेंगे उसमें जो अपने पैरों पर खड़ा हो। क्या आपका यही मतलब था? जवाबन आलिम शाह कहता है, तुम सबसे ज्यादा जीत जाते गुंदूज, लेकिन अब तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए खेमा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे कबीले को तबाह कर दूंगा। तो उस्मान कहता है, तब मेरा भाई और नेकुला फाते होते। ठीक है, उस बारूद का क्या होगा जो तुम दीवारों को गिराने के लिए लाए थे? यह सब सुनकर गेगातू कहता है, उस्मान क्या तुम मुझे अपनी बातों से मार डालोगे? अपनी तलवार निकालो और खत्म करो। जवाबन उस्मान गेगातू को दबोचते हुए कहता है, नहीं गेगातू, ये कोई आसान मौत भी नहीं है, लेकिन तुम वो खेल देखोगे जो वजीर ने तुम्हारे साथ पहले खेले थे, और फिर तुम वो अजाब देखोगे जो ये सहेगा। तुमने हमें बहुत तकलीफ दी, तुम दुख सहने से पहले नहीं मरोगे। तुम्हारे सिपाहियों को जहर किसने दिया? तुम पर हमला किसने किया? तो गेगातू कहता है, अगर तुम नहीं तो कौन? उस्मान कौन? जवाबन उस्मान कहता है, जिसने तुम्हारे सिपाहियों को जहर दिया था वो आलिम शाह का साथी है। यह सुनकर गेगातू गुस्से से लाल हो जाता है और अगले लम्हे आलिम शाह को गर्दन से दबोच लेता है। काफी देर की जोर आजमाई के बाद उस्मान कहता है, सिपाहियों उठाओ इन्हें। यह सुनकर सिपाही उन दोनों को पीछे कर लेते हैं और उस्मान कहता है, यह वजीर मजीद मौत का इंतजार करेगा और मैं अकेले गेगातू से बात करूंगा। इसके साथ ही सिपाही उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं और उस्मान कहता है, अब इनके दरमियान झगड़ा हुआ। यह कहते साथ ही उस्मान सरदारी पोस्ट पर बैठ जाता है और मजीद कहता है, जिंदा रहने के लिए ये एक दूसरे को बेच देंगे। तो नेकुला कहता है, आखिरकार जीत हमारी है उस्मान साहब। जवाबन कोशिश कहता है, जीत में तुम्हारा हिस्सा बहुत मशकूक है नेकुला। तो नेकुला कहता है, अगर आपका मतलब जंग है तो मैं ताकत जमा करने के लिए पीछे हट गया था, तो मेरा हिस्सा आपसे कुछ ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे शहनशाह के सामने शर्मिंदा नहीं किया उस्मान साहब। जवाबन उस्मान कहता है, नेकुला, हम में से कोई भी शर्मिंदा नहीं है। शहनशाह को बताएं कि खतरा टल गया है, लेकिन वो तुर्क सरदार से छुटकारा हासिल ना कर सका। नाजरीन, इसके बाद अगले सीन में अब देखेंगे नेकुला और कोशिश एक खेमे में मौजूद होते हैं और नेकुला कहता है, वजीर आलिम शाह और गेगातू उस्मान के दुश्मन एक एक करके खत्म हो रहे हैं। कोशिश तो कोशिश कहता है, बुनियादी तौर पर वही हो रहा है जो हम चाहते थे। इस पर नेकुला पूछता है, कोशिश क्या वाकई ऐसा है? हमने उस्मान को इस्तेमाल किया और उसके तमाम दुश्मनों को पकड़ लिया, अब हमारी बारी है कोशिश। ये तुम भी जानते हो, वो पहले हमारे किलों में जाएगा और फिर वो हम पर हमला करेगा। यह सुनकर कोशिश मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं अभी जाऊं और इसके बारे में उस्मान को बताऊं तो वो तुमसे यही निपट लेगा। काई कबीले के जिंदान में गेगातू उस्मान के सामने बैठा होता है और उस्मान कहता है, मुझे सब कुछ बताओ गेगातू। तो गेगातू कहता है, यह कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा उस्मान? इस पर उस्मान कहता है, हमने ये बहुत बार सुना, मैं जो सुनना चाहता हूँ वो आरगुन खान है। यह सुनकर गेगातू कहता है, आरगुन तुम्हें मार डालेगा उस्मान, तुम्हारी वजह से तमाम कबीले राख हो जाएंगे। तो उस्मान कहता है, आरगुन खान ने फरिंगों के पास एक एलची भेजा, बताओ उसका मकसद क्या है? वो राज क्या था? तुम तुर्कों और मुसलमानों से बहुत डरते हो, इसलिए तुम ईसाइयों से इत्तेहाद चाहते हो, तो तुम इतने मजबूत नहीं हो जितना कि चाहते हो। जवाबन गेगातू कहता है, यह जमीनें आसान है उस्मान, लेकिन दुनिया पर हुक्मरानी के लिए इत्तेहाद की जरूरत पड़ती है। तुम शहनशाह और गवर्नरों के साथ काम क्यों करते हो? तुम जवान हो, छोटों से इत्तेहाद करो, हम बालिग हैं उस्मान। इस पर उस्मान कहता है, क्या तुम्हारा बड़ा इत्तेहाद वजीर आलिम शाह के साथ है? तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम किसके साथ इत्तेफाक करोगे। उसकी जान कीमती है, जल्द या बदेर वो सब कुछ बताएगा। तो गेगातू कहता है, वजीर और उसका दिमाग छोटा है उस्मान, उसने मुझे धोखा दिया, अगर तुमने उसे कत्ल ना किया तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर उस्मान पूछता है, क्या तुम अल्लाह को जानते हो गेगातू? फिर गफलत के समय में तुम किसको कहते हो कि जवान है, जिसने हर चीज को काबू किया हुआ है? यह सुनकर गेगातू गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहते साथ ही गेगातू आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उस्मान जंजीर पकड़ लेता है और कहता है, कुत्तों का भौंकना भेड़िए को मुतासिर नहीं करता। यह कहते साथ ही उस्मान चला जाता है और गेगातू चिल्लाते हुए कहता है, जब चंगेज खान की औलाद ने सुना कि गेगातू मर गया, वो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को तबाह करने के लिए यहाँ पे हमला करेंगे, फिर तुम कुत्ते और भेड़िए को देखोगे उस्मान, और जब आखिरी कबीला जलेगा तो तुम अपने किए पर पछताओगे। नाज़रीन, इसके बाद सुबह के वक्त आप देखेंगे मलहून खातून अलाइजा से पूछती है, क्या मेरे वालिद की तरफ से कोई खबर है? जवाबन अलाइजा कहती है, नहीं मलहून खातून, वो आ रहे होंगे। इस पर मलहून खातून कहती है, और हाँ के पास रहो और अगर उसे कुछ हो जाए तो मुझे बताना। इसी लम्हे कबीले के ढोल बजने की आवाज सुनकर मलहून खातून खुश होते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे नाना आए हैं। और हाँ, यह कहते साथ ही वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ती है, जबकि बारगोन उमर साहब और सिपाहियों की लाशें लेकर कबीले में दाखिल होता है। मलहून खातून भी तेजी के साथ खेमे से बाहर आ जाती है। उस्मान भी सरदारी खेमे से बाकी लोगों के साथ बाहर आता है। काफी देर सन्नाटे के बाद जब मलहून खातून मैयत को देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, बाबा। यही कहते साथ ही मलहून खातून भागती हुई मैयत के पास आती है और जब कपड़ा हटाती है तो मैयत उमर साहब की होती है। ये देखकर मलहून खातून पर क़यामत टूट पड़ती है। सिलवा भी दिखावे के लिए आंसू बहा रही होती है। देखते ही देखते हर आंख अश्कबार हो जाती है और मलहून खातून कहती है, आपको क्या हुआ बाबा? क्या मेरे नसीब में आपको इस तरह देखना लिखा था? क्या आप अपने नवासे को इस तरह देखेंगे? इसी लम्हे सिलवा भागती हुई बारगुन के पास जाती है और उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहती है, मेरे चचा को क्या हुआ बारगुन? मेरे चचा के साथ ये किसने किया बारगुन? बोलो। इसके साथ ही उस्मान भी बारगुन के पास आता है और पूछता है, ये कैसे हुआ और किसने किया? जवाबन बारगुन कहता है, हम एक जाल में फंस गए उस्मान साहब। मंगोलों ने हम पर हमला किया, हम उन्हें शिकस्त दे देते लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी।
जबकि उधर मलहून खातून रोते हुए कहती है कि जल्द साहब के बेटे उमर साहब आप मैदान जंग में शहीद होना चाहते थे, आपने जो चाहा वो हासिल कर लिया, आपको शहादत मुबारक हो। यही कहते साथ ही मलहून खातून अपने आंसू साफ करती है और मजीद कहती है मैं अब रोने के लायक नहीं हूँ, कोई भी रोए मत, शहीद के पीछे रोना जायज नहीं है। मेरे वालिद ने शहादत का मशरूब पिया, उन्होंने उमर बारिश के लिए दुआ मांगी, कोई भी नहीं रोएगा। इसके साथ ही उस्मान बुरहान से कहता है उन दोनों कुत्तों को मेरे पास ले आओ। हुक्म मिलते ही सिपाही वहां से चले जाते हैं और मलहून खातून उमर साहब का चेहरा ढांपते हुए कहती है मैयत को खेमे में ले जाओ। इसके साथ ही सिपाही मैयत को उठाकर सरदार खेमे की जानिब चल पड़ते हैं और उस्मान मलहून खातून को सहारा देता है। इसे लम्हे सिपाही गेगातू और वजीर आलिम शाह को लेकर वहां आते हैं और सरदार खेमे के सामने उन्हें घुटनों बंद कर देते हैं और उस्मान उन्हें देखते हुए कहता है तुम्हारे पास ताकत थी लेकिन तुमने उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तुमने जुल्म की आग को पूरी दुनिया में फैला दिया और मजलूमों और बहुत से सिपाहियों को कत्ल किया, अब वक्त आ गया है। यह कहते साथ ही उस्मान तलवार बेनियाम करने लगता है तो गेगातू कहता है तारीख से मिटाने के लिए मुझे मार डालो उस्मान। फिर आलिम शाह कहता है जब तुम मुझे मारोगे तो अकल खो दोगे, बेवकूफ मत बनो क्योंकि तुम दर्द में हो। दोनों की बातें सुनकर उस्मान अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है, मगर उस्मान के कुछ करने से पहले ही कबीले के ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। ढोल की आवाज सुनकर आलिम शाह और गेगातू सुक्का सांस लेते हैं और सुल्तान मसूद अपनी फौज के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। सुल्तान मसूद को देखकर आलिम शाह और गेगातू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, जबकि सुल्तान की अचानक आमद पर कबीले के लोग शिशुपंज में पड़े होते हैं और आलिम शाह उस्मान से कहता है अब तुम क्या करने जा रहे हो उस्मान, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें सुल्तान के सामने मार डालो। इस पर गेगातू कहता है मसूद इसकी इजाजत नहीं देगा, तुम्हें हमें पहले मार देना चाहिए था उस्मान। इसके साथ ही सुल्तान सरदार खेमे के सामने पहुंचकर घोड़ा रोक लेते हैं और कहते हैं उस्मान साहब ये क्या हाल है, गोया मुझे मारने की कोशिश काफी नहीं थी, अब क्या तुम हमारे इत्तेहादी कमांडर गेगातू को भी मार डालोगे, क्या तुम रियासत के वजीर आलिम शाह को मार डालोगे, तुम्हारी सरकशी की कोई हद नहीं उस्मान। तो उस्मान कहता है सुल्तान इससे पहले कि ये गद्दार आपको निशाना बनाए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था, ये आपको धोखा देने के लिए आपके पीछे खड़े थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर सुल्तान मसूद कहते हैं मैंने जो अपनी आंखों से देखा उस पर कैसे यकीन ना करूं उस्मान, या फिर मैं तुम्हारे झूठे अल्फाज पर यकीन करूं, मैं तुमसे पूछता हूं कि यह क्या है। फिर सुल्तान ने एक और कोशिश को देखकर कहते हैं शहनशाह के साथ इत्तेहाद और गवर्नर के साथ ताउन। इस पर उस्मान कुछ बोलने लगता है तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं बस उस्मान बस, वजीर और गेगातू को छोड़ दो, कोनिया में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ा जाएगा। तो उस्मान कहता है सुल्तान जब तक आप हकीकत नहीं देखते तब तक मजलूमों का खून बहता रहेगा, अब ये अंधी आंखें खोलें और जालिमों का खून बहने दें, जालिमों पर रहे मजलूम के साथ खयानत है। यह कहते साथ ही उस्मान एक ही वार में वजीर आलिम शाह का सर दर्द से अलग कर देता है। यह देखकर सजोके सिपाही सबको निशाने पर रख लेते हैं और सुल्तान उस्मान को देखते रह जाते हैं। उस्मान कहता है जब गिबत खत्म हो जाए तो सच्चाई शुरू होती है, यह धोखा खाने का वक्त नहीं है, सच सबको नजर आएगा। यह कहते साथ ही उस्मान तलवार गेगातू की गर्दन पर रख लेता है और सबकी सांसें थम जाती हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही बॉलम 85 का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।